Hello students, today we will see friction. Okay, so in this concept the first topic is static friction, then limiting friction or maximum static friction, and then kinetic friction. There is one another friction which is known as a rolling friction. We will see it in our next theory. In this theory we will see this one. Okay, one by one. First we will see static friction. Okay, so to understand the concept of static friction, consider a body of mass m placed on a horizontal surface. Okay, so here you can see that here I am considering one body of mass m. ओके, सपोज ये बॉडी है, उसका मास m है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है. ठीक है, तो अगर बच्चों इस बॉडी पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा. अगर ये फोर्स f है वो स्मॉल है, ठीक है, और ये मास जो m है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये बॉडी मूव नहीं होगी. Same example, for example, if you applied a horizontal force on a cupboard, okay, which is having a very heavy mass, okay, then from your experience you can say that the cupboard would not move. Cupboard move नहीं होगा, ठीक है, because force applied by you in a horizontal direction is very less as compared to that mass. But still here the question is why the cupboard will not move. ओके, कपबोर्ड मूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई ना कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, लग रहा है, जो आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है. ठीक है, और वो कपबोर्ड को क्या रख रहा है, स्टेशनरी रखेगा. ठीक है, सेम यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इफ फोर्स F इज स्मॉल, ओके, विच इज अप्लाइड horizontally on a body, okay, then we can say block will not move. Then block will not move. Here the question is why the block is not moving. Why block is not moving? block move क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, अगर ये फोर्स F जो अप्लाई किया है वो सिर्फ और सिर्फ वही एक फोर्स ये ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है, मतलब वो नेट फोर्स हो गया, मतलब ब्लॉक ये डायरेक्शन में मूव होना चाहिए था, बट ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, ब्लॉक स्टेशनरी है. तो ये स्टेशनरी ब्लॉक क्यों रह रहा है, वो क्या इंडिकेट करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट फोर्स एक्स at this surfaces parallel to this surfaces, bottom surface of block and the horizontal surface, इससे पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा जो ये अप्लाइड फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. ठीक है, और वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक को क्या कर रहा है, ये मास जो है m उसको क्या कर रहा है, स्टेशनरी रख रहा है. सो हियर आई कैन से इफ द फोर्स F is small, the body will not move. So here I can say if F is only force acting on body, then body must move with a small acceleration, with a small acceleration is equal to F by n. अगर सिर्फ यही एक फोर्स लग रहा है, F is the only force acting on this body, then it must move in this direction with an acceleration E equal to F by m. It's a small acceleration. Why small acceleration? क्योंकि फोर्स F small है तो acceleration ये भी क्या होगा, small होगा. But here I can say, but our
experience say that the block will remains stationary. ब्लॉक क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है. ब्लॉक will remain stationary. Okay, what it indicates? Which indicates that there is some opposing force. Okay, there is some opposing force comes into play. Okay, when the force F is applied. So which indicates there is a some opposing force comes into play, or you can say comes in action when force capital F is applied. ये जो opposing force है, ठीक है, वो opposing force की डायरेक्शन कैसे है? पैरेलल टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. ओके, एंड इट अपोज द applied force F and maintains the body static, or you can say stationary. That is the reason why this opposing force is called what? Static friction, Fs. It's called static friction, Fs. S is a suffix which indicates that static. A word static means a body remains stationary. Okay, friction acting on body when the body is stationary. So here I can say the opposing force of the opposing force, okay, acting parallel to surfaces in contact. ये सरफेस से क्या है? ये फोर्स पैरेलल है. ठीक है, इसीलिए बोल सकते हैं कि द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड मेंटेन the body stationary is called static friction. ये फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs. Okay, where suffix xs is used to indicate the word static. Okay, because we have one another friction Fk. K stands for kinetic. So here we are using the suffix s. Now the question is, if the value of f is very small, okay, but if it is increased, okay, a little bit, इसको थोड़ा increase करते हैं, ठीक है, तो क्या ये ब्लॉक मूव होगा? नो, तो भी ये मूव नहीं हो रहा है. उसका मतलब सामने fs भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा. ठीक है, जैसे कि आप f की वैल्यू सपोज 1 न्यूटन है, तो सामने ये भी 1 न्यूटन हो जाएगा. ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन करते, ये भी सामने क्या होगा? 2 न्यूटन होगा. ठीक है, बट द क्वेश्चन इज, इफ अप्लाइड फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रेजेंट? सो द आंसर इज नो, कि अगर अप्लाइड फोर्स नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं होगा. सो हियर आई कैन से the static friction does not exist itself, or you can say ये अपने आप नहीं लगता है. जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तभी स्टैटिक फ्रिक्शन प्ले होगा. सो हियर आई कैन से when applied force is applied, or you can say when external force is applied, static friction comes into play, or you can say comes into action to oppose the external force.
oppose the external force. Means I can also say if there is no external force, there is no static friction. So here I can say if applied force is not present, there is no static friction. Okay, so here I can say if there is no applied force, there is no static friction. So the static friction does not exist by itself, does not exist by itself. Okay. Second, very important point is the static friction is self-adjusting force. Self-adjusting force मतलब क्या होता है बच्चों? ये अपने आप एडजस्ट होता है क्या? अपने आप अपनी वैल्यू क्या करता है? इंक्रीज या डिक्रीज करता है क्या? सो हियर द आंसर इज व्हाट? यस. ओके. As applied force Fs increases, the static friction Fs is also increases. Maintain its value equal and opposite to what? Applied force. So here I can say static friction is self-adjusting force because as F is increases, applied force is capital F. If it is increases, Fs is also increases. Okay. To maintain, or you can say maintain its value equal and opposite to applied force F, but the condition is only up to certain limit, but only up to certain limit, keeping the body at rest. मतलब जैसे ही आप F इंक्रीज करोगे Fs सामने इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ये 1 न्यूटन किया है, सामने ये 1 न्यूटन हो गया. ये 2 न्यूटन हुआ, सामने ये भी 2 न्यूटन हो गया. सपोज इसको 2.1 न्यूटन करता हो, ठीक है, और ब्लॉक मूव होना स्टार्ट कर देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 न्यूटन तक ये Fs क्या कर रहा है? अपने आप को इक्वल एंड अपोजिट रख रहा है कैपिटल F से, और बॉडी को क्या रखता है? रेस्ट पे रखता है. जैसे ही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ये एक लिमिट से ज़्यादा हो गई, ठीक है, एज आई सेड इट मेंटेन इट्स वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट. तो सपोज यही वो लिमिट है 2 न्यूटन. जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स Fs से इंक्रीज हो गया, बॉडी क्या करेगी? मोशन करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, तो वो एक लिमिट पे जो फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि Fs की वैल्यू जैसे ही F इंक्रीज करता है Fs धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था. जैसे ही बॉडी मोशन करना स्टार्ट करने वाली है, वो एक मोमेंट पे, वो एक एज पे हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ठीक है, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू वो लिमिट से इंक्रीज हो जाएगी, क्या होगा? बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी. So here I can say the static friction is a self-adjusting force, but only up to certain limit. Okay, so here I can say as the applied force is increases, to maximum static friction, which is called what? Limiting friction. Okay, so as the applied forces increases to that limit, body starts moving. बॉडी क्या कर देगी? मूव करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, सो ओवरऑल स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बॉडी को क्या करता है? स्टेशनरी बनाए रखता है. ठीक है, मतलब क्या करता है? वो इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है. तो बच्चों क्वेश्चन होता है कि ये इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है?
ठीक है. So impending motion is what? A motion that would takes place if there were no friction. सोचो बच्चों यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता और मैंने यहाँ पे स्मॉल फोर्स एफ अप्लाइड किया है तो ऑब्वियसली मोशन होता और उसका एक्सेलरेशन जैसे हमने यहाँ पे बताया कितना होता है F/m होता. अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो ठीक है. तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग मोशन. जो होना चाहिए था अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, लेकिन होता नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है. सो हियर आई कैन से सो स्टैटिक फ्रिक्शन opposes impending motion. A motion we can say that would takes place मोशन जो कि होना चाहिए था बट होता नहीं है. ओके, बट होता नहीं है, बट doesn't takes place. Okay, so here I can say a motion that would takes place if there were no friction. फ्रिक्शन नहीं था तो ये मोशन पक्का होता, लेकिन होता नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग मोशन. तो ये मोशन जो नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए था, जो मोशन होना चाहिए था वो उसको क्या कर रहा है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग मोशन. मींस स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस व्हाट? इम्पेंडिंग मोशन. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो लेट्स सी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो बच्चों जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया कि ये जो बॉडी थी जिसका मास m था उसके ऊपर अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स F की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो सामने जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक ही. तो वो लिमिट पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है. सो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, सो up to that limit we can say body remains stationary. Okay, from that moment we can say body at the verge of starting its motion. बॉडी वो एक लिमिट पे क्या करती है? जैसे ही फोर्स उससे ज़्यादा बढ़ेगा बॉडी क्या करने वाली है? अपना मोशन स्टार्ट करने वाली है. ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बच्चों डेफिनेशन क्या होती है? वी कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज friction acting on a body when it is at the verge of starting its motion. When it is at the verge of starting its motion, जब अपना मोशन स्टार्ट करने वाला होता है. वर्ज मीन्स अ बॉर्डर, एज. जब अपना मोशन स्टार्ट करने वाला वो बॉर्डर, वो एक लिमिट. ठीक है, उस लिमिट पे जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है. उससे ज़्यादा भी, थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स लगा तुरंत बॉडी मूव करेगी. जैसे कि हमने यहाँ पे आगे डिस्कस किया कि 1 न्यूटन यहाँ पे है तो सपोज ये भी 1 न्यूटन होगा. अगर ये 2 न्यूटन, इसको इंक्रीज करते हैं तो ये भी अपने आप को इंक्रीज करेगा क्योंकि ये एफ जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है. ठीक है, अब ये आ गए सपोज ये लिमिट कि वो 2 न्यूटन ही वो लिमिट है. ठीक है, तब तक वो बॉडी स्टेशनरी रहती है. और जैसे ही 2.1 न्यूटन हमने दिया या 2.01 न्यूटन दिया, वो बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका मतलब 2 न्यूटन जो था ये क्या था? आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था, जिसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय वी कैन से Fs मैक्स. ओके, इसको ऐसा डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे बच्चों इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट this limiting friction
which is what Fs maximum, okay, is 1, यहाँ पे लिख देते हैं 1 directly proportional to this, directly proportional to normal reaction, or you can say normal force or reaction force. And second, okay, it is directly proportional to normal reaction and it is independent of area of contact between the two surfaces. It does not depend on area of contact कि ये ब्लॉक और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस दोनों के बीच में कितना एरिया कांटेक्ट में है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है. सो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 here we have that Fs maximum is directly proportional to what? Normal reaction. So here therefore I can say Fs maximum is directly proportional to what? Normal reaction. And here you guys have to remember that this is also contact force. It is the contact force which is acting parallel to the surfaces in contact, and this one is also contact force which is normal, which is what? Normal to surfaces in contact. ये हमने common forces in mechanics वाला जो concept था उसमें देखा था कि ये दोनों ही contact force है, ठीक है, ये दोनों ही component है एक ही contact force के. So here I can say that maximum static friction or limiting friction is directly proportional to what? Normal reaction, and you can denote it by R as well. So removing proportionality, here we have Fs maximum is equal to mu s into n, where mu s is what? Proportionality constant, where mu s is proportionality कांस्टेंट. ओके, सो ये जो म्यू एस है उसके बारे में बात करते हैं. इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट इज नोन एज अ, आई कैन से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. एंड हियर आई कैन से इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेसेस, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट. जो दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. याद रखना बच्चों, Fs मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो ये जो कितना एरिया कांटेक्ट में उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो म्यू एस है जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो सरफेसेस कांटेक्ट में उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. मतलब सरफेस कैसा है, रफ है, हाईली रफ है, ठीक है, लीस रफ है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. सो ये we have one equation that Fs maximum is equal to mu s. So here I can say Fs maximum is what? Maximum static friction. So all the other values of Fs, ये वाला जैसे कि हमने बताया 2 न्यूटन आपका क्या होगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. तो ये वाला भी क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये Fs है, ये क्या हो गया आपका? Fs मैक्सिमम. तो यहाँ से बोल सकते हो कि Fs की जितनी भी वैल्यू है वो सब क्या होगी? Fs मैक्सिमम से लेस होगी, ठीक है. और आप देखो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एस एन से इक्वल है, ठीक है. सो इसके ऊपर से यहाँ पे हमारे पास है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ओके, इट इज गिवन अप मैथमेटिकली. सो हियर आई कैन से द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन mathematically given as all the value of Fs is less than mu s n, but one value is equal, that is maximum,
So generalized situation is what Fs maximum is less than or equal to mu s into n, and the value which is equal to mu s n is what limiting friction or maximum static friction. Now we will see the kinetic friction. So now let's see kinetic friction. So here I can say when the applied force F is exceeds the maximum static friction which keeping the body at rest, okay, the relative motion between the surfaces in contact will started. Okay, so here we can say when F is greater than Fs maximum, the motion will started, and hence from this I can write when applied force F increases, then limiting friction Fs maximum, okay, the relative motion will started. ठीक है, हमने एक आगे एग्जांपल लिया था कि हम लोग कपबोर्ड मूव कर रहे थे, अगर आप स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली कपबोर्ड का वेट ज़्यादा है, ठीक है, आप इजीली मूव नहीं कर पाओगे। तो क्या कपबोर्ड का वेट ज़्यादा है इसलिए इजीली मूव नहीं कर पाते हैं? नो, सामने क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच कीपिंग द बॉडी एट रेस्ट। बट जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स एफ की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, सामने एफ एस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। जैसे ही अप्लाइड फोर्स एफ की वैल्यू ग्रेटर देन एफ एस मैक्सिमम हो जाएगी, कपबोर्ड मूव होगा। और आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपने जो बॉडी यानी कि कपबोर्ड स्टेशनरी था तब जो अप्लाइड फोर्स लगाया वो एफ वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द फोर्स व्हेन द कपबोर्ड इज मूविंग। जब कपबोर्ड मूव होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तब आपको जो अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो स्टार्टिंग में लगाया उससे क्या होगा, कम होगा। इस यही एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर से यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है बच्चों, एंड दैट इज इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट व्हेन द रिलेटिव मोशन इज स्टार्टेड, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन रिलेटिव मोशन इज स्टार्टेड, नॉट दैट पॉइंट, जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है तब जो फ्रिक्शन लगता है, ओके, is less as compared to what static friction is less as compared to what maximum static friction. So here I can say it is experimentally found that when relative motion is started, friction acting on body is less than Fs and Fs maximum। ऑब्वियसली वो Fs से लेस होगा तो Fs मैक्सिमम से तो लेस ही होगा, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है जब रिलेटिव मोशन है वो स्टार्ट हो चुका है, जब ये बॉडी है वो ये डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या लिखोगे, लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। सो द फ्रिक्शन फोर्स which opposes relative motion of a body. Relative motion of a body means relative to the horizontal surface on which block is moving, on which the body is moving, okay. So the friction force which opposes the relative motion of a body and acting parallel to the surfaces in contact and acting parallel to surfaces in contact is called काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं एफ के,
ठीक है। तो जैसे कि हमने आगे की थियरी में बात की थी, वो एक लिमिट की जब तक बॉडी स्टेशनरी रहती है, ठीक है, वो लिमिट पे बॉडी स्टेशनरी रहती है, वही लिमिट से जस्ट थोड़ा सा भी फोर्स ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है एफ एस मैक्सिमम, उससे थोड़ा भी ज़्यादा फोर्स अगर हमने लगाया तो क्या होगी, मोशन करेगी, और उसके बाद जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है हमारे पास, विच इज सेम एज व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो हियर वी कैन से इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट kinetic friction is one directly proportional to normal reaction, or you can say normal force, and two is independent of area in contact. Once again, likewise, limiting friction, the kinetic friction is also independent of area of surfaces in contact, and it is directly proportional to what, normal reaction. So here I can say Fk is directly proportional to normal reaction, which is n. So Fk is equal to mu k into n, where proportionality constant mu k is called coefficient of kinetic friction, where proportionality constant here I can say here proportionality constant mu k is called coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction, and likewise coefficient of static friction. It is depends on the nature of surfaces in contact. So here I can say its value depends on nature of surfaces in contact. Okay, so here we have the theory of kinetic friction. Okay, now if we have to calculate the acceleration, okay, of a body when it is moving, so here I can say applied force is F, the kinetic friction is Fk. If body is moving with the acceleration A in this direction, then we can say another force which is acting is what, pseudo force, and that is equal to what, ma. So here I can say when F is greater than Fs maximum, body moves with an acceleration A is equal to F minus Fk by m. Now this relation comes. So here if we balance the left hand side forces and right hand side forces, or you can say in equilibrium position, I can say F which is applied force is equal to ma plus Fk. So ma is equal to F minus Fk, and hence A is equal to F minus Fk by m. Okay, next, if applied force F is equal to Fk, then what happens? If applied force F is equal to kinetic friction, then in this equation you can see that अगर यहाँ पे रखेंगे F माइनस Fk में F इज इक्वल टू Fk रख देंगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा, then a is equal to 0 and we can say body moves with constant वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा बच्चों तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो बॉडी मूव करेगी लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ हियर आई कैन से इफ देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, ओके, अगर अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स इनिशियली था, बॉडी ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही थी, अगर सडनली हमने अप्लाइड एक्सेलरेशन हटा लिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर f0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ के बाय एम, मतलब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, इस तरफ के मोशन को ये काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, ठीक है, मतलब बॉडी की स्पीड, बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। सो हियर आई कैन से इफ अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, due to retardation, a is equal to माइनस एफ के बाई एम। रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, माइनस एफ के बाई एम, एफ हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है। ड्यू टू रिटार्डेशन ए इज इक्वल टू माइनस एफ के बाई एम, द बॉडी इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट, बॉडी कहाँ पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। जनरली whenever the kinetic friction is asked in exam in 2 marks, no need to write these points, okay, we have very important result which is this two, you have to remember these two result, okay, and this one also. So here we have the concept of static friction, limiting friction and kinetic friction, okay. Static friction and limiting friction are acting on a body when the body is at rest, and the kinetic friction is the friction acting on the body when body is in motion, okay.